show that the function the function f z is equal to root of xy is not regular at origin, although CR equation satisfy at that point, at the point. Look, first of all, we have to show that the function fz equal to root of xy is not a regular at the origin, although the CR equation satisfied at the point. We know that W is equal to fz, fz equal to u plus iota v, fz equal to u plus iota v. So u plus iota v is equal to root of xy. Compare real and imaginary. U is equal to root of xy and v is equal to 0. Here the imaginary part is 0. So now for the CR equation, differentiate del u by del x. Del u by del x is equal to limit x tends to 0 u of xy minus u00 upon x. When if I am telling x tends to 0, in that case y should equal to 0. Then limit x tends to 0 u of x 0 minus u00 upon x. So ux0, if I am putting y is equal to, then u is equal to 0. ये 0 बन जाएगा plus the origin. It satisfies at the point whenever the function is an analytic. If a function is an analytic, it will satisfy at the origin. तो ये 0 आपके पास में माइनस करो, 0 minus 0 by x, it is equal to 0. So del u by del x is equal to 0. Similarly, find del u upon del y. Limit y tends to 0, that means x equal to 0, u of xy minus u of 0 whole upon y. Again this is equal to 0 minus 0 by y equal to 0. And you can see that for the del v upon del x, it will be 0, and del v upon del y is equal to 0. So when the function x fz is equal to root of xy and which is not a regular at the origin, although CR equation are satisfied at that point. CR equation satisfying at particular that point. So first, comparing the real and the imaginary part, we have find the u is equal to root of xy and v is equal to 0. So del u by del x is equal to this one, uxy equal to root of xy, this one. When I am using x tends to 0, in that case y is equal to 0. If I am putting y is equal to 0, then u becomes 0, and origin itself it is a 0. So divided by x, it will become 0. Similarly for the y and for del v by del x and del v by del y. So this is your question. If I have find the del u by del x from these partial derivative, what we can observe that del u by del x is equal to del v upon del y and del u upon del y equal to del v by del x. Although it is in the CR equation, it is minus. So if I am putting 0, the 0 you can put the minus also, you can put the plus also,
whatever we can use, you can do it. And then if I am using this one, that means it satisfy the CR equation. अब चाहो तो उसमें एक ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, ये जो लिखा हुआ है इसको आप del u अपॉन del y इक्वल टू del v बाई del x, 0 is equal to minus 0, you can write it. वो itself 0 के साथ में माइनस लगा दो या प्लस लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो वो हम कह सकते हैं इट सेटिस्फाई एट दी CR इक्वेशन सेटिस्फाई. नाउ फॉर द रेगुलर पॉइंट, उसको हम देख लेते हैं. ये जो पूछ रहा है, जो दिस fz इज नॉट रेगुलर एट द ओरिजिन, वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. फॉर दिस शुड आई रब वन, दिस वन, w इज इक्वल टू fz, ये वाला पार्ट रब कर दूं मैं. यस सर. ओके, मैं इससे सबसे पहले रब करता हूँ. अब देखो Yes, sir. आगे की जो कंडीशन आपके पास है, फॉर दैट f dash z, what is f dash z is equal to, that is limit z tends to 0 f z plus del z minus fz upon z. You can use this one. We know that f z plus del z, this is limit x tends to 0 and y tends to 0. Here it is a root of xy minus 0 upon x plus iota y. We know that z is equal to x plus iota y. So f z plus del z, or we can also write f z minus f0 by z. This one we can write it. But initially we have learned f z plus del z minus f z by z. At the origin, if I input z is equal to 0, so here it becomes the function 0, and I am not increasing the function del z. या यूँ समझे del z बहुत हल्का सा इंक्रीज हुआ, that is लगभग वो 0 के आसपास, इसलिए हम f z minus f0 by z. I have written this one. Now use whatever the condition, you can do it. मैं यहाँ पर सबसे पहले y is equal to use y is equal to mx, that is along a line, along any line. उसे मैंने यूज किया है. यूज करते ही ये मेरा क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, रूट ऑफ एक्स वाई का मतलब हो गया एम एक्स स्क्वायर 0, x कॉमन ले लिया, तो आपके पास 1 प्लस आयोटा m आपके पास आ गया, यहाँ से x आपके पास में आ गया, इस x से x कैंसिल हो गया, x और y कुछ है नहीं आपके पास, तो रूट m अपॉन 1 प्लस आयोटा m, ये क्या बन गया f डैश z. f डैश z या यूँ हमने ओरिजिन किया हुआ, ये f डैश 0 आपके पास में, इसका आंसर निकला आपके पास में रूट m अपॉन 1 प्लस आयोटा m आपके पास में. अब मैं इसको अगर चेक करूं, मैं ये तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया. अब हम ये देखना चाह रहे हैं, जो अगर मैं इसमें ये वैल्यू निकल गया, दूसरी वैल्यू हम और चेक करके देख लेते हैं, जो क्या वह कहीं पर कोई वैल्यू ऐसा है जहां पर वो 0 प्रूव कर पाए, क्योंकि उसने कहा रेगुलर नहीं है, इज नॉट ए रेगुलर. इसका मतलब ये हो गया, जो आप एक और आप लाइन चाहो तो ले सकते हो. तो मैंने एक एक्सिस ले लिया, along any line या any axis, and that axis is x axis ले लिया. x axis का मतलब हो गया y is equal to 0, y is equal to 0, वही ओरिजिन पर f dash 0 is equal to, अगर मैंने यहाँ पर y is equal to 0, तो 0 minus 0 अपॉन whatever it is, वो पूरा टोटली 0 बन जाएगा. तो एक जगह आपके पास f dash 0 is equal to 0 आ रहा है, और दूसरी जगह f dash 0 is equal to m रूट m प्लस 1 प्लस आयोटा m आ रहा है. दोनों ही वैल्यू आपके पास में डिफरेंट है. सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज नॉट रेगुलर एट ओरिजिन. सो इट इज कॉल्ड it is not a unique. Here we can see that
द फंक्शन, जो भी आपके पास जो फंक्शन जो आपने दे रखा था उसका मैंने पहले सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करवाया। सी आर इक्वेशन से सेटिस्फाई होने के बाद में जैसे मैंने कह दिया हो गया, नाउ यू चेक फॉर द ओरिजिन। ओरिजिन के लिए मैंने फॉर्मूला ये आपके पास है ही, लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बाई जेड, ये ओरिजिन के लिए ही होता है ये। तो वहाँ मैंने ओरिजिन पुट कर दिया। ये फंक्शन आपके पास में रूट ऑफ एक्स वाई है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। ये आपने एफ डैश जेड तैयार कर दिया। नाउ फॉर अलोंग एनी लाइन का मतलब y इज इक्वल टू मैंने mx पुट कर दिया है। आप y इज इक्वल टू x भी पुट कर सकते हो। वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस आयोटा आ जाएगा आपके पास में। उसको सॉल्व किया मैंने तो ये आंसर आ गया। फिर मैंने कहा जो मैं कोई भी x एक्सिस के अलोंग ले लेता हूँ, जहाँ पर y इज इक्वल टू 0, चाहे y एक्सिस के अलोंग इफ यू कैन टेक इट देन पुट x इज इक्वल टू 0। इसको यूज़ किया तो f डैश 0 इज इक्वल टू 0 निकल गया। इसका मतलब यहाँ f डैश 0 इज इक्वल टू 0 आपके पास में, और यहाँ से किया तो रूट m अपॉन 1 प्लस आयोटा m। ये दोनों वैल्यू आपके पास में सेम नहीं है, ये डिफर कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉइंट। ठीक है, अब आइए आगे। शुड आई रब दिस वन, रब कर दो इसे। यस सर। यस दोनों नोट कर भी रहे हो कि नहीं? यस सर, कर रहे हैं। ऐसा ना हो जो नोट करो ही नहीं और फिर रह जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। ये इजी पार्ट में भी है, इसलिए कह रहा हूँ पहले इसको ध्यान से कर लो और आगे इजी चलेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी है जो कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन जो है, एक्स क्यूब माइनस का 3xy² प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 3y² प्लस का 2x प्लस का 1। बहुत अच्छा हेलो क्वेश्चन। सर। हाँ बताओ। हाँ सर, हाँ ऊपर जो बताओ। आप लिख रहे हैं सर वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, अब दिख रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा है ठीक है, सर। देखिए एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x² माइनस का 3y² प्लस 2x प्लस 1, ये इक्वेशन आपको दे रखा है। ठीक है, अब उसमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन। पॉइंट नोट करते चलो, क्या क्या डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन पहला एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन सबसे पहला पार्ट तो ये निकालना है। ठीक है, जैसे आप एनालिटिक निकाल दोगे उसके बाद वो कह रहा है सेकेंड पार्ट, लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन should satisfy, should satisfy। ठीक है, ये दे रखा है। और इसमें भी ये जो है ये दिस इज इक्वल टू u। इसका u का मतलब ये हो गया u इज अ रियल पार्ट, इसका मतलब हमें इमेजिनरी भी निकालना होगा। तीन पार्ट आपके पास में हो गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान से फिर सुन लो। द रियल पार्ट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 3x² माइनस 3y² प्लस 2x प्लस 1। And after that we have to find, when the real part is given to you, we have to find first it is a imaginary। if you find the imaginary, इसका मतलब उसे हम कहते हैं conjugate, it is called conjugate। तो हमें conjugate निकालना है। तो when you find the conjugate, after that you can find the Laplace equation। आप उसको Laplace equation, what is Laplace equation? Second differentiate of u with respect to x, second differentiate of v with respect to y, the summation of both the differentiate that should equal to 0। This is called the Laplace equation, or in another word we can say it is a harmonic function also। तो Laplace और imaginary मैंने कह दिया जो conjugate का पार्ट है। नाउ द फर्स्ट वन जो एनालिटिक, एनालिटिक का मतलब ये हो गया वॉट एवर द फंक्शन u इज गिवन इन द x एंड y, आपको कोशिश ये करना है w इज इक्वल टू एफ जेड के फॉर्म में आपको निकालना है। w इज इक्वल टू एफ जेड। कुछ नहीं चला, देख लो आपके सामने चलाओ, सामने तो क्लास ले लो, दोनों चीज़ आपको कुछ भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो आई हैव टू फाइंड द एनालिटिक का मतलब क्या, w इज इक्वल टू एफ जेड।
if the real part u is given in the, एक मिनट बेटा, क्या कह रहा? So again you should understand this one, the real part equal to x cube, this one is given to you, and we have to find these three type, and the first one it was the analytic function. In that analytic function w is equal to fz जो आपके पास जो है, उस w is equal to fz में एक्स वाई जो आपके पास आ रहा है उस एक्स वाई को चेंज करके हमें ये सारा जो चीज़ आपके पास जो है जेड के फॉर्म में हमें बदलना होगा उसको, और अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जेड के फॉर्म में जैसे ही ले आओगे उसको एनालिटिक भी कह देंगे और वो जेड के टर्म्स में भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रब करता हूँ। हेलो, हाँ हेलो, हाँ भाई, ये बातें है कि अभी अपने यहाँ वैक्सीन जो है इस पर उपलब्ध अच्छा नहीं रखनी है और आप ही ज़्यादा से ज़्यादा अपन टाइम पे नहीं पहुँचा दें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज है ताकि बीमारी को मिल सके। एक मिनट, अब 5 मिनट थोड़ा रुक जाए।
आपका चम्मक हो तो हेलो। काम कर रहे हो आप, चम्मक है आप पे? हाँ नहीं, हाँ उससे आप देख लो एक बार। यस सर। हाँ, अच्छा हो जाए तो छोटी बड़ी हो ठीक है। हो जाए। Now look, u is equal to x cube. So first of all, this function we have to find use take the u again here. U is equal to x cube minus 3xy square plus 3x square minus 3y square plus 2x plus 1. Differentiate u with respect to x, that is 3x square minus 3y square plus 6x plus 2. Again differentiate with respect to x, del 2u upon del x square, that is 6x plus 6. I have differentiated the u with respect to x, again with respect to x. Now the v part, v is equal to, v get on differentiate partial differentiate with respect to x, partial differentiate with respect to y, del u upon del y, 0 minus 6xy, 0 minus 6y, and it is again it is 0. Again differentiate with respect to y, del 2u upon del y square. क्या बंद कर दो ना यार, that is minus 6x minus the 6. It is del, if I am, this is equation number 1 and this is equation number 2. Add equation first and second, del 2u upon del x square plus del 2u upon del y square equal to 6x plus 6 minus 6x minus 6 equal to 0. If del 2u upon del x square, del 2u upon del y square equal to 0, we can see that this is harmonic function और Laplace equation, Laplace equation. इसको हम कह सकते हैं, ये जो u जो दे रखा आपके पास में, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया फर्स्ट सेकेंड x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में किया मैंने सेकेंड डिफरेंशिएट, और देन आफ्टर differentiating the second time I have added this one, it is equal to 0. Now it satisfy the harmonic or Laplace. एक पार्ट तो मेरा ये हो गया. First one I have proved it. Now the second part. Should I rub this one? ये आया समझ में आपको? यस सर, आ गया। ये आ गया. इसको मैं रब करता हूँ, अब सेकंड पार्ट हम प्रूव यस करते हैं. सर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से del u हटा दिया, del 2u हटा दिया. अब देखो, ये पार्ट तो मैंने प्रूफ कर दिया आपके पास में, ठीक है, जो आपको करना चाहिए था. अब उसके बाद जो है मैं v निकालूंगा. वी नो दैट conjugate of u is v. u का कॉन्जुगेट जो है वो v होता है. सो dv इज इक्वल टू del u अपॉन del x इंटू का dv, सॉरी इंटू dx प्लस del u अपॉन का del y इंटू का dy. ठीक है, del u बाई del x और del u बाई del y dx dy हो गया आपके पास. ये चेन डेरिवेटिव है. टोटल डेरिवेटिव जो हम निकालते हैं इन द फर्स्ट सेमेस्टर वी हैव लर्न टोटल डेरिवेटिव.
that del v dv is equal to del u by del x into dx plus del u upon del y into dy। अब ये आएगा कहाँ से? आपने तो निकाला del u upon del x और del u upon del y, ये आपके पास में आ गया है, बिल्कुल सही है। अब हमें ये चेंज करना है, लेकिन जब v का काम कर रहे हैं तो ये u कैसे आ गया? इसका मतलब u को हटाकर आप v करोगे, आप यहाँ पर भी u को हटाकर आप v करोगे आप, क्योंकि v ही निकालना है आपको। तो सो dv इज इक्वल टू del v अपॉन del s इंटू dx प्लस del v अपॉन del y इंटू dy। आपने निकाला तो है del u by del x और del u अपॉन del y, ये dv और ये कैसे आ सकता है? तो इसको निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, since this function is an analytic, since this function is an analytic, so it will satisfy the CR equation। और CR इक्वेशन क्या है? CR इक्वेशन आपका del u by del x इक्वल टू del v अपॉन del y और del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस का del v अपॉन del x। तो जो आपने del u by del x निकाला हुआ है, ये मेरा क्या बन जाएगा? ये तो आपके पास आ जाएगा del v अपॉन del y। जो आपने del u अपॉन del y निकाला हुआ है, ये क्या बन जाएगा आपके पास है? माइनस का del v अपॉन del x। अब इसको पुट कर दो आप देखो पुट कैसे करते हो आप इसको। तो मैंने यहाँ से इसे हटा दिया। सर Now- थोड़ा नीचे का पोर्शन नहीं दिख रहा है सर। ठीक है, चलो कोई बात, उसको मैंने सेंटेंस रिपीट कर दिया। Since this function is an analytic, so it will satisfy the CR equation। बस ये लिखा हुआ मैंने। अब मैं आगे ऊपर कर रहा हूँ। देखिए dv is equal to, ये मैंने dv कर दिया, this is equal to क्या लिखा हुआ है? del v अपॉन del x। कहाँ है? ये रहा, ये माइनस और यहाँ भी माइनस, तो सारे माइनस कैंसिल आउट कर दो आप। तो यहाँ पर आ जाएगा 6xy प्लस का 6y ब्रैकेट क्लोज इनटू का dx प्लस del v अपॉन del y। कहाँ है del v? ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इंटू का dy। ठीक है, ये पार्ट आपके पास आ गया। अब आपके दिस इज इक्वल टू, इसे मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे हम कर सकते हैं वो देखिए। हेलो, कर दिया? वहाँ प्रमोद कहाँ है? लाइन में थोड़ा लगना है यार, मैनेजर के पास में जाना। लाइन में लग गया फिर तो दिक्कत ही नहीं आएगी ना। तब तो दिक्कत क्या आएगी? तब तो कैश निकलना ही है। तो लाइन में लगने की जरूरत है, साइन पीछे किया हुआ है तो नहीं करना चाहिए। जब पैसा कोई दूसरा लेने के लिए जाता है ना, तब साइन प्रमोद का चलेगा। चलो कर दिया तो उससे साइन करवा लेंगे अपने से। अरे 3 लाख में तो बाउंड्री उठाना है यार। ठीक है, मैनेजर मेरा नाम है ये रामकुमार राजकुमार यादव। ठीक है, अब देखो, इन द फर्स्ट सेमेस्टर वी हैव लर्न द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो आपने पढ़ा होगा mdx प्लस ndy। कुछ याद आ रहा है? mdx प्लस ndy। यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। वहाँ पे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक तो हम del m अपॉन del y और इक्वल टू del m अपॉन del x, इसको तो हम एग्जैक्ट बताते हैं। सेकेंड वन आफ्टर इंटीग्रेट, ये m ये आपके पास हो जाता है dx
इसको हम प्रूव करते हैं, और n रिमूवल ऑफ द x इनटू का dy, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ c1 होता है, यहाँ c2 होता है, फिर दोनों कंबाइन करके प्लस का c बन जाता है। ये तो एग्जैक्ट का काम है आपको, बस वही सेम चीज़ आपको यूज़ करना है। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, आप डायरेक्ट x है x के रिस्पेक्ट में करो, y है y के रिस्पेक्ट में कर दो आप। उसके बाद जो सिमिलर टर्म्स है, that similar term should be counted as a single term. Similar term should be counted as a single term, और जो different term है वो तो different है ही आपके पास में। How I will solve it, उसको देखिए आप। कैसे मैं इसे सॉल्व करता हूँ वो देखिएगा। सबसे पहले मैं जो ये है उसी को मैंने x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दिया। तो ये बन गया आपके पास में 6x² y/2 प्लस का 6xy प्लस 3x² y माइनस का 3y³ प्लस का 6xy प्लस का 2y, लास्ट में कांस्टेंट प्लस आ गया। 2 से ये 3 आपके पास। अब ये ध्यान रखना, सिमिलर टर्म्स शुड बी काउंटेड एज अ सिंगल टर्म। तो 3x² और कहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। इन दोनों में से ऐड नहीं करोगे, इनका एक ही नंबर काउंट करना है। ये आ गया 3x² y, 6xy, ये अगेन ये दो टर्म आपके पास में है, तो यहाँ पर एक ही टर्म लेना है 6xy। अब क्या रह गया आपके पास में, इस 3 से ये 3 कैंसिल, -y³ प्लस का 2y प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू, ये आपके dv का इंटीग्रेट करूंगा तो v, ये v आपके पास में मिल गया। पहले u था आपके पास में, अब v मिल गया आपके पास में। दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ u, दैट इज जो इमेजिनरी पार्ट, जो v जो है वो इमेजिनरी निकाला था। ये तो मैंने सॉल्व किया बाय वन मेथड। अनदर मेथड जो है वह, जो मैं मोस्टली आई यूज दिस मेथड, फर्स्ट mdx, दिस इज द m, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ मैंने 6xy प्लस का 6y, इसको इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपके पास आ गया 3x² y प्लस 6y। नेक्स्ट वन, and removal of the x, it is not the similar terms, it is not the minus term, but this symbol is called the removal of the x. Wherever the x term will be there, this is the part of the n, wherever the term there will be the term of x, that x term will be removed. अब देखिए क्या सब आ जाएगा, इसमें x है, इसको नहीं लोगे आप। नेक्स्ट 3y² है, इसको आप ले लोगे तो माइनस का 3y² आ गया। अगेन इट इज 6x, x आ रहा है, रिमूव कर दो, 2 उसको लेना होगा आपको, ये ले लिया, क्या है ये, सॉरी dy, ये dy हो गया। इसे करो तो ये माइनस का y³ आ जाएगा, y², y³/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 2y, एंड इट इज हियर इट इज c1, इट इज c2, दोनों कंबाइन कर दो आप। कंबाइन करते क्या आ जाएगा, 3x² y प्लस का 6xy माइनस का y³ प्लस का 2y, और c1 c2 का मतलब ये कहलाता है। देखो ये जो आंसर मैंने निकाला हुआ है, दिस वन, और ये जो आंसर निकाला हुआ है, इसमें कोई भी चीज डिफर कर रहा है क्या? इसमें कोई भी चीज डिफर कर रहा है आपका? हेलो हेलो, यस सर। ये आया दोनों मेथड, मैंने दोनों मेथड से मैंने v निकाल दिया आपको। एक डायरेक्ट जो है वह dx है, x के रिस्पेक्ट में, dy है तो y के रिस्पेक्ट में, उससे आंसर आ गया। और एक मैंने अपने तरीके से, जो मैं मोस्टली इस मेथड को यूज करता हूँ, mdx को इंटीग्रेट कर दो, एंड n रिमूवल ऑफ द x, उसको आप लेकर सॉल्व कर दो, दोनों का आंसर सेम है, तो 2 पार्ट तो मेरा हो गया है। अब मैं इसको यूज करूंगा थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है? तो मैं ऊपर वाला पार्ट को रब कर रहा हूं। अब देखिए कैसे मैं निकालूंगा
मैंने u निकाल दिया, मैंने v निकाल दिया। अब we know that w is equal to fz, w is equal to fz, and that fz is equal to u plus iota v. This fz is equal to what is the value of the u? u आपके पास में क्या है? तो u is equal to x cube minus 3x square plus 3x square minus 3y square plus 2x plus 1. This is the part of the u, x cube minus 3xy square. This is x y square plus 3x square minus 3y square plus 2x plus 1. ये तो हो गया u, इसको बंद किया, प्लस आयोटा v क्या निकाला आपने? 3x स्क्वायर y प्लस का 6xy माइनस वाई क्यूब प्लस का 2y प्लस c, इससे मैंने निकाल दिया v। तो u आ गया, v आ गया। अब इस सबको मैं रब कर रहा हूं। अब देखिए, I have to solve u plus iota v in the terms of z। इसको सॉल्व करके आपको z के टर्म्स में निकालना है। कैसे मैं निकालूंगा? फॉर दिस आई हैव यूज द सिमिलर पावर्स। तो सिमिलर पावर्स देखो, एक्स क्यूब, जहां जहां 3 के पावर आ रहे हैं उनको ले लो आप एक तरफ। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अगेन प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा माइनस वाई क्यूब आयोटा। दिस इज, ये सारे टर्म जो मैंने देखा वो 3 के पावर में आया। अब 2 के पावर में लो, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy आयोटा। ओके, 3 के पावर हो गए, 2 के पावर हो गए, और 1 का, 1 में आपके पास 2x प्लस 2y आयोटा, ये 1 का हो गया। अब विदाउट द पावर ऑफ वेरिएबल वो आ गया आपके पास 1 प्लस c आयोटा। पहले 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, और फिर 0 का। अब ये सारे एक्स वाई, इन्हीं को कुछ ऐसा आपको करना है कि वो z के फॉर्म में तैयार हो जाए मेरा। कैसे करूँगा देखिए आप, एक्स क्यूब प्लस, यहां पर मैंने आयोटा वाई का होल क्यूब कर दिया। देखो, एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब कर दिया, प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस 3x माइनस आयोटा वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3 4, ये पूरा हो गया, इसको क्लोज कर दिया। प्लस 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 डॉट एक्स डॉट आयोटा वाई, ये 2 टर्म का हो गया। प्लस 2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस आयोटा वाई, प्लस इसको पूरे को सी डैश नाम दे दिया, एंड दैट सी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। आपने ये टर्म्स को समझा आपने कि कैसे किया मैंने? दिस वन, हैव यू अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। देखिए, बता सकते हो कैसे किया मैंने ये? कैन यू टेल मी? सर सर जो एक्स क्यू है वो वो एक्स लिख दिया है सर। जो इधर वाई आयोटा है, आयोटा का क्या करेंगे सर? वो नेगेटिव होगा और पहले से वो नेगेटिव लगा हुआ। हाँ, उसका मतलब ये हो गया
आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। मैंने इन दो चीज का मैंने यूज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि वी नो दैट x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू जेड होता है। मैं देखो मैंने सब जगह कोशिश मैंने ये किया है कैसे न कैसे करके मेरा x और आयोटा वाई बन जाए बस। अब देखिए ये जो मैंने टर्म लिखा हुआ है ये क्या किसी का एक्सपेंशन है? आप बता सकते हैं क्या ये किसी का एक्सपेंशन है? a प्लस बी का होल क्यूब है ये। यस This is सर, a ए प्लस प्लस बी बी का का होल क्यूब होल x प्लस होल आयोटा क्यूब y का होल क्यूब आ गया प्लस 3 ये किसका हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस ये सर, वाला टर्म क्या हो गया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस आयोटा y यस सर, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 x प्लस आयोटा y और प्लस c डैश। व्हाट इज x प्लस आयोटा y? z। ये आ गया z क्यूब। दिस इज सॉरी z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस c डैश। ये आपके पास में fz। देखो मैंने fz लिया, z के टर्म्स में सारा मैंने आंसर निकाल दिया। अब आया समझ में आपको? यस ये सर, इसमें 3 पार्ट थे आपके पास और तीनों पार्ट हमें जो है वो प्रूव करना होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, उस u को हमने फर्स्ट डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डिफरेंशिएट हो गया। फिर उसी u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और अगेन y से। तो सेकंड डेरिवेटिव y का सेकंड डेरिवेटिव x है, दोनों को ऐड कर दो। इफ इट इज इक्वल टू 0 वो लैप्लस कह दो या हार्मोनिक कह दो, वो निकल गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, if u is given to you then we have to find the imaginary part or the conjugate of the u. The conjugate of the u is called the v. the v को निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा बताया आपको, जो दैट dv is equal to, जिसको हम कहते हैं टोटल डेरिवेटिव। in the first semester you have learned the total derivative conditions, that dv is equal to del v by del x into dx plus del v upon del y into dy। अब del v upon del x और del v upon del y लाएंगे कहाँ से? उसको लाने के लिए this function is an analytic function. When the function is an analytic, that means it satisfies the CR equation. So by using that CR equation, that del v upon del x and del v upon del y will be interchanged with the, yeah, we can replace del v upon del s and del v upon del y to del u by del s और del u by del y, उससे रिप्लेस कर सकते हो जो कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ है। उसको पुट कर दो, जैसे ही पुट कर दोगे तो आपको दिख जाएगा अरे यार ये तो एग्जैक्ट के फॉर्म में दिख रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। अब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसका मतलब एग्जैक्ट तो है ही, ये चीज़ है। उसको सॉल्व करिए तो हाउ विल सॉल्व, जो x है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, y है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, या सॉरी इंटीग्रेट कर दो। उसके बाद मैंने एक कंडीशन आपको बताया क्योंकि कई बार स्किप हो जाता है माइंड से हम लोग सिमिलर टर्म्स जो है उसको हम ऐड कर देते हैं, बट इन द एग्जैक्ट कंडीशन whenever the similar term is there, the similar term should be counted as a single term. Similar term should be counted as a single term. उसको मैंने सिंगल टर्म में ले लिया तो उसे आंसर निकल गया मेरा। और m को आप कर दो डिफरेंशिएट, मतलब इंटीग्रेट कर दो x के रिस्पेक्ट में। n जो है आपके पास में उसमें जहां जहां भी x के टर्म आ रहा है उसको रिमूव कर दो आप, माइनस नहीं करना है हमें। x के टर्म सिर्फ x को रिमूव नहीं है, x के साथ में जो आ रहा है उसके मल्टीप्लिकेशन में टर्म जो आ रहा है उसको ही पूरा रिमूव कर देंगे। एंड द टर्म्स व्हिच विल रिमेन दैट इज विदाउट ऑफ द x, उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए आप, और इंटीग्रेट करने के बाद में वही रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट हमने आपने x और y के रिस्पेक्ट में जो किया हुआ था। जैसे ही आपको v मिल गया तो u और v दोनों तैयार हो गया। इफ u और v इज इक्वल टू, मतलब है आपके पास में, देन वी हैव टू फाइंड द फंक्शन एनालिटिक दैट w इज इक्वल टू fz। जितने भी फंक्शन आपके पास है सबको z में निकाल दीजिए आप। तो z में निकालने के लिए वी नो दैट w इज इक्वल टू fz एंड fz इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। उस u प्लस आयोटा v को मैंने यहाँ जो u था u रख दिया, जहाँ v था v रख दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने दिमाग एक्सरसाइज मैंने किया, कोशिश मैंने किया z कैसे बनेगा। z बनता है x प्लस आयोटा y से, तो वही x प्लस और आयोटा y मैंने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है और सॉल्व करते करते मैं आपको यहाँ पर लिया।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सफिशिएंट है। इसको हम आगे जो है यस सर। उस मैंने आपको पीडीएफ मैंने कहाँ तक भेजा हुआ था? मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, वो कितने पेजेस तक भेजा था मैंने आपको? कुछ ध्यान में है? 15 पेजेस। 15। तो ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट 15 और आपको मैं यहाँ आज जो है ना वो सेंड कर दूंगा मैं, फिर आगे के लिए हम तैयार रहेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।